ये पासवर्ड बोल रहे पासवर्ड अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही। मारिया बोलना, आवाज नहीं आ रही बोल। मेरी जब तक चाहिए।
Sir, I can't able to listen your voice. बोलना आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। Sir, unmute your voice. ये मारो आवाज इतनी आ रही। अरे रात आवाज नहीं आ रही। Sir, we are not unable to listen you. Unmute your mic. सर एयरटेल में पोर्ट करके लो, जियो खराब चल रहा तुम्हारा। ओके, अब आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ ओके, वो म्यूट हो गया था। ओके ठीक, हाँ अब आ रही। ओके बोला एयरटेल ठीक ठीक। चल। So such type of compound in which aromatic ring it is directly attached to the aliphatic part. This is the aliphatic part or alkyl group which is attached to the aromatic ring. ये करेगा। Such type of compounds they are called as the such type of compound in which this aliphatic group or alkyl group is directly attached to the aromatic ring. Such type of compound they are called as arenes. ऐसे compounds को हम क्या कहते हैं? arenes कहते हैं. Such type of compound they are called as arenes or aromatic aliphatic hydrocarbons. This part is aromatic, this part is aliphatic. They have general formula CnH2n -6. Okay, for example, this is the toluene. This is the aromatic part, benzene ring, and CH3 group it is attached to that. This is called as toluene. This is called as xylene. If CH3 groups they are attached to each other in 1,2 position, this is 1,2 position, it is called as the xylene or orthoxylene. Ortho means 1,2 position.
1-2 position पे दो CH3 group attached है, that is called as orthoxylene. This is ethyl benzene. This part is ethyl and this remaining part is benzene. Now coal tar, it is the main source of all hydrocarbons. So type of all hydrocarbons, they are obtained from coal tar. Small amount of these hydrocarbons are also found in natural petroleum. नेचुरल पेट्रोलियम जो मिलता है उसके अंदर भी थोड़ा सा हिस्सा हमको मिलता है, लेकिन मेन सोर्स उसका कोल टार डामर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम विच ऑल दिस कंपाउंड दे आर derived. Now let us go for their nomenclature, how they are named. Now systematic nomenclature of benzene derivatives is based on the fact that benzenoid compound are named as substituted benzene. They are named as substituted benzene. After the name of this benzene is considered as the parent compound. बेंजीन को पेरेंट समझा जाता है, उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन. द नेम ऑफ द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर रिटन by prefixing the name of the substituent. सबसे पहले name of the substituent लिखेंगे, उसके बाद before the name of benzene, root name benzene, name of the ये substituent जो है followed by the name of parent compound. ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन है. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? ब्रोमो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद बेंजीन. ठीक है, इन दिस कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय द बेंजीन, nitrobenzene. Here ethyl group is the substituent, therefore ethyl benzene. Now this isopropyl group, it is the substituent, therefore it is called as isopropyl benzene. Now the main reactions of this are the electrophilic substitution reactions. Important reactions of aromatic compounds or arenes are the what we call electrophilic substitution reaction. उनके important reactions क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन. ये 3 एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल. ये क्या करता है? रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को. रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एरोमेटिक ग्रुप बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का? यस, ये डिस्टर्ब मत करो. स्क्रीन को कौन डिस्टर्ब कर रहे हो? स्क्रीन को डिस्टर्ब मत करो यहां पर. So benzene undergoes electrophilic substitution reaction. The benzene ring with delocalized pi electron in an electron rich system. बेंजीन रिंग है, इसके अंदर में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो दिख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको ये पाई बॉन्ड है. ठीक है, तो दिस इज ए पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम. इट इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल. इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल और एच न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रह जाता है. Okay, इन दिस वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी कंपाउंड होता है
उसमें से हाइड्रोजन एटम निकालना, उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना। ये हाइड्रोजन एटम निकल गया, इसकी जगह पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, प्लस ये न्यूक्लियोफाइल और H दोनों अटैच हो गए। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरिनेशन, ये सब उसके एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अपने जो एग्जाम्पल देखा है इसमें E plus is electrophile and Nu minus it is a nucleophile. Such reaction in which hydrogen atom of aromatic ring is replaced by electrophile, they are called as electrophilic aromatic substitution reactions. ऐसे reactions जिसके अंदर में क्या होता है, aromatic ring में का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, such reaction in which hydrogen atom of aromatic ring it is replaced by an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल के जरिए उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक क्यों कहा जा रहा है, क्यों रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर में होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म किस, जनरल मैकेनिज्म इसका ऐसा है, ई न्यूक्लियोफाइल प्लस कैटलिस्ट, E प्लस न्यू Nu कैटलिस्ट। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच है, कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल E प्लस रिलीज हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है तो पहली स्टेप के अंदर में एक्चुअली यहाँ से पहली स्टेप शुरू होती है। दिस इलेक्ट्रोफाइल इट अटैक्स ऑन द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम क्लोरिनेशन के अंदर में देखते हैं, क्लोरिनेशन के अंदर में क्या होता है, बेंजीन रिंग रिएक्ट होती है क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। ठीक है, बेंजीन reacting with chlorine in presence of catalyst FeCl3 और प्रोडक्ट क्या होता है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। तो यहां पर FeCl3 इसके जगह पर अपन लेंगे कैटलिस्ट एज ए FeCl3 और यहां पर ClCl। ठीक है, ClCl क्लोरीन के दो एटम्स है ClCl, दे विल अटैक रिएक्ट विथ FeCl3 सो एज टू गिव Cl प्लस और FeCl4 माइनस यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, Cl प्लस आपको रिलीज हो गया, ये Cl प्लस अटैक करेंगे इसके ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन। इस तरह से कार्बोनियम आयन यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे। ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ट्रांसफर होके ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है इधर, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है, पॉजिटिव प्लस He न्यूक्लियोफाइल। दिस कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। द इंटरमीडिएट दिस कार्बोनियम आयन इट इज स्टेबिलाइज बाय द रेजोनेंस। इसकी स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबिलाइज होता है रेजोनेंस से। ये यहाँ पर बताया गया है किस तरह से स्टेबिलाइज होता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से 3 स्टेप होते हैं उसके अंदर में। सबसे पहली स्टेप क्या है, वैसे तो 2 ही स्टेप है। पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप या 2, मेन तो 2 ही स्टेप है, लेकिन पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, वो अटैक करेंगे एरोमेटिक रिंग के ऊपर, कार्बोनियम आयन तैयार हो जाएगा और कार्बोनियम आयन जो कुछ है वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे प्रोटॉन को, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव दिस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस तरह से 3 स्टेप के अंदर मैकेनिज्म होता है। पहली स्टेप क्या है, बोलते चले जाएंगे आप लोग। पहली स्टेप
हेलो, पहली स्टेप क्या है? हेलो, स्टेप फर्स्ट क्या है? हेलो, Formation of an electrophile. हाँ, वेरी गुड। पहली स्टेप रहेंगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड। दूसरी स्टेप क्या रहेंगी? अटैक ऑफ Electrophile attacks the aromatic ring to form हाँ, वेरी गुड। एरोमेटिक रिंग के ऊपर कार्बोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा और कार्बोनियम आयन तैयार हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड स्टेप के अंदर में क्या हो जाएगा? ये कार्बोनियम Loss of loss of- substitution. ठीक है, इसमें No ये reason. प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम लॉस हो जाएगा और लॉस होके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपने को हासिल हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आइए चलते देखते हैं किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन हम देखते हैं। तो आपको एग्जांपल बताया गया है कि व्हाट इज नाइट्रेशन। तो सबसे पहले आप नाइट्रेशन किसी का भी ले रहे हैं तो सबसे पहले नाइट्रेशन की डेफिनेशन लो। क्या बोलते हैं अपन नाइट्रेशन को? व्हाट इज नाइट्रेशन? यस, नाइट्रेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मीन्स ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, ये किसी भी कंपाउंड में का हाइड्रोजन निकालना, उसकी जगह पर नाइट्रो ग्रुप अटैच करना, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेशन। चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। यहाँ एरोमेटिक के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है। बेंजीन रिएक्ट करता है HNO3 और H2SO4 के साथ में। ये इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 दोनों के मिला के नाइट्रेटिंग मिक्सचर तैयार होता है। इसमें क्या होता है? अल्टीमेटली रिएक्शन होती है नाइट्रो ग्रुप की। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों में से एक ही है, क्योंकि ये सारी पोजीशन 1 ही है। यहाँ पर भी हम अटैक करें तो 1 है, जहाँ पर भी हम अटैक करेंगे दैट विल बी पोजीशन 1। अगर यहाँ पर भी आप अटैक कर रहे हैं तो दैट विल बी एक पोजीशन, यहाँ पर कर रहे हैं तो दैट विल बी 1 पोजीशन, यहाँ भी कर रहे हैं तो दैट विल बी पोजीशन 1। जहाँ से हम अटैक शुरू करेंगे वही पोजीशन हमारी नंबर 1 होगी। ठीक है, सो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन is carried out with the help of mixture of HNO3 and H2SO4। इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, HNO3 और H2SO4। so let us see its mechanism। देखिए स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं अपन इसको। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, HNO3 प्लस H2SO4, NO2 प्लस 2HSO4 माइनस H3O प्लस। ठीक है, इतना नहीं लिखने जम रहा है आपको तो सिर्फ आप HNO3 प्लस H2SO4 NO2 प्लस भी लिखे तो जमेगा। ये आगे के अगर जम रहा है तो लिखो, अगर नहीं जम रहा है तो कम से कम इतना तो लिखो। ठीक है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इज गेटिंग फॉर्म्ड। ये आगे का लिखे तो बहुत अच्छा है, जितना याद रह रहा है उतना लिखो, लेकिन नाइट्रोनियम आयन लिखना मत भूलो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल? नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, कार्बोनियम आयन तैयार होता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कार्बोनियम आयन तैयार होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का लॉस हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम क्लोरीनेशन लेते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन अगर हम लेते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन के जगह पर HNO3 के जगह पर हम क्लोरीन लिखेंगे Cl2, यहाँ पर FeCl3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर Cl। ठीक है, Cl FeCl3 कैटलिस्ट और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये बेंजीन का नाइट्रेशन है। अभी मैं आपको क्लोरीनेशन समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं समझा रहा हूँ किस तरह से। बेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन आप लिखेंगे Cl2
और उसके बाद यहाँ पर FeCl3 कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, या उसके बजाय आप FbR3 भी यूज कर सकते हैं। FeCl3 या FbR3, और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर। ठीक है, कितने स्टेप रहेंगे रिएक्शन के अंदर में? ये रिएक्शन के अंदर भी, क्लोरिनेशन के अंदर में, हेलो, 3 स्टेप रहेंगे। ठीक है? पहली स्टेप क्या रहेंगे? Cl2 प्लस FeCl3। ठीक है, यहां पर Cl प्लस फॉर्म हो जाएगा और FeCl4 माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? Cl प्लस। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट टाइम में अपन लिखकर बता देंगे, लेकिन फिर भी वक्त की कमी की वजह से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, समझ में तो आ रहा है आपके? ओके सर। हाँ सर। Cl2 प्लस FeCl3 यहां पर रहेगा, Cl प्लस FeCl4 माइनस। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा यहां पर? क्लोरोनियम आयन Cl प्लस। तो फिर ये क्लोरोनियम आयन यहां पर अटैक करेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेंगे Cl प्लस, यहां पर अटैच करेंगे Cl आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन यहां पर रहेगा, और लास्ट स्टेप के अंदर में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर ये नाइट्रोबेंजीन है तो वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से 2 रिएक्शन, आज कल आपको वो क्लोरिनेशन का टोटल मैकेनिज्म मैं बता दूंगा। आज वक्त की कमी की वजह से मैं लिख नहीं सका यहाँ पर, कल आपको लिख करके बता दूंगा मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क। यस, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। है डिफिकल्टी किसी को? यस, 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 नो, कुछ तो बोलो ना, डिफिकल्टी है नहीं है? नो सर, नो सर, नो। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ, वी विल मीट टुमारो एंड पॉसिबली एट द सेम टाइम। सुबह में आपको मैसेज डाल दूंगा मैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सर कल संडे है ना? यस, संडे है ना सर? यस, यस, आई रिमेम्बर संडे इज देयर। ऑनलाइन क्लास कर सकते सर अपन? हाँ कर सकते, बट यू हैव टू फेस द एग्जाम वेरी सुन, यू रिमेम्बर दैट, इट इज संडे। ठीक है सर। यू हैव टू फेस द एग्जाम्स वेरी सुन, बहुत जल्दी आपको एग्जाम को फेस करना है, इसलिए मैं संडे के दिन भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी सर। ओके, ठीक, ओके सर, कोई बात नहीं। ठीक, स्टडी करते रहो, ये सब एग्जाम के अंदर भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। ओके।